Hello everyone, welcome to ProTalent and welcome to today's session on 22nd August. We are going to talk about all these 9 important events, starting with Manipur to some important legal concepts on water disputes in India, some international news item about Saudi and UAE, oil drilling and ecology related very important news, very crucial news which Supreme Court provided, okay, a judgment on Gujarat High Court's action which is crucial. Modi Saab is visiting South Africa for BRICS summit, so we will discuss on it. Some important sports events which are going on, very important chronology for Article 370 and Russia's moon mission Luna 25 is what we are going to talk about. So here the news is coming from Manipur. Manipur is a 60-member legislative assembly. I'm sure you know that there is a legislative assembly within a state. There is a state which is having a legislature, and from legislature there is executives which are elected. And then there is a governor. Governor is an appointed person by central government. In this case, governor is Ansuya Uke. What is the name of the governor? Anusuya Uke. Anusuya Uke, okay, that's a governor of the Manipur. And after approval by cabinet, they recommended that 12th Legislative Assembly of Manipur should convene on August 21, but still the Legislative Assembly could not start. And that is where a big important opinion which is coming from the Hindu newspaper editorial. Manipur Legislative Assembly not convened on the recommended date due to ongoing crisis. The governor Anusuya Uke did not issue notification despite cabinet's advice. Remember, you know that governor must work under the aid and advice of the cabinet ministry. In this case, governor did not do this. So this delay is attributed to the political and law and order situation in the state. Kuki ethnicity group, they are unable to attend the session due to ongoing violence, and therefore they couldn't start. Remember, governor is bound by the government's advice on summoning assembly as per 2016 judgment of Supreme Court in Nabam Rabia case. In a previous scenario, the session was held in March. The new session was required before September 2. However, it did not start. And the demand for assembly to discuss May violence linked to Meitei community's tribal status. So I'm sure we all know the dispute in Manipur. A very simple dispute, not a very simple but a complex scenario, which is about Meitei demanding ST status. They got it from the High Court. Kuki says that they should not be given. Naga says that we want greater Nagalingam. Okay. So overall, the delay in this, you can say, assembly convention is primarily coming from the big questions on government's legitimacy and authority. क्या government legitimately and authorized है इस particular चीज़ को करने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है. Remember, governor को compulsory cabinet के recommendation को follow करना है, ठीक है. At the same time, we can say the problem is when governor is stopping such kind of thing, then there is all the more huge demand which is coming up of application of article number 356, which is not coming up. At the same time, there appears to be an unusual delay in appointment of Justice Siddharth Mridul, who should be appointed as a Chief Justice of Manipur. Okay. As of now, the Manipur is under acting Chief Justice for several months now. Reports suggest that Centre has forwarded Collegium's recommendation to the state government for its consent
The question arises whether any constitutional functionary in the state is holding back the process or not. The chain of the events set of an order passed by the acting Chief Justice has already witnessed much violence and disorder, and state should not lapse into further constitutional disarray, and that is a big concern which are being raised in Manipur. At the same time, if you know that Supreme Court appointed a particular committee, the committee was headed by Jammu Kashmir High Court Chief Justice Geeta Mittal. So there is a committee which is headed by Geeta Mittal. This Justice Geeta Mittal committee, appointed by the Supreme Court, submits 3 reports. It suggests that appointment of a nodal officer to take charge of reconstruction of documents, and it seeks substantial improvement in the compensation scheme. Committee has filed 3 separate reports. नोट किया जाए. ठीक है, अगस्त 19 में ये मीटिंग हुई थी, उसके मुताबिक ये कमेटी एस्टेब्लिश करी गई थी. कमेटी 3 लोगों की थी, उसमें से द जस्टिस गीता मित्तल वाज द हेड ऑफ इट. अदर people, the other 2 members were Justices Shalini, you can say Fansalkar Joshi and Asha Menon. Okay, so this is all women committee was established. Okay, so the 5-judge bench headed by Chief Justice D.Y. Chandrachud has entrusted all women committee the task of providing healing touch to Manipur by supervising the entire event. Okay, so they were looking at supervising this. The first of the 3 reports submitted by the committee highlights loss of essential document. Remember, when you don't have an essential document with you, this creates lot of trouble. So there are a lot of places were burned. So committee suggests that appointment of a nodal officer to take charge of reconstruction of these documents. This is very important. Okay, so many people who lost their Aadhaar card, PAN card or bank account details, anything, they will be getting this back. But till that point in time, they have to get into lot of trouble. So what you need to remember from a GK point of view, from the exam point of view, is the name of the person, and all women committee, all women committee, and rest of the other people are Justice Shalini Fansalkar Joshi and Asha Menon. Both are former High Court judges. Now this is very interesting about the Kaveri water dispute. Remember, Supreme Court is going to constitute a new bench to hear the Kaveri water dispute. Remember, water disputes in India cannot be handled by Supreme Court. Remember that. Okay, so remember, interstate water dispute are the most contentious issues in the country. The important cases are Kaveri water dispute, Satluj Yamuna link canal. So Supreme Court doesn't have judiciary power on it. Remember, it is only the Parliament may by law provide adjudication of any dispute with respect to any dispute on the water or complaint related to the use, distribution and control of interstate water dispute. So पार्लियामेंट के पास अल्टीमेट पावर है, वो एक लॉ बनाएंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन दे या ना दे, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा. इज दैट वेरी क्लियर? तो यहाँ पे पार्लियामेंट ने बोला होगा, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक से नई बेंच बनाने का ऐलान किया. ठीक है. सिमिलरली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. Chandrachud said some parts of the draft standard operating procedures, which is SOP, prepared by center to tailor judicial conduct in the government related cases. ठीक है. So where the Supreme Court can give judgment on judicial review or not, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने गाइडलाइन लगाए हैं. I have gone through your draft SOP. This is what Chief Justice of India says. There are some points which actually say how judicial review should be exercised. ठीक है. So क्या गवर्नमेंट
सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू किस तरीके से करना चाहिए वो सिखा सकता है, इज अ बिग क्वेश्चन. सो यू हैव टू टेल मी दैट सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का अधिकार कौन से आर्टिकल से आता है. ठीक है, पहला सवाल. एंड दूसरा सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू? व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? इज दैट वेरी क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एंड नाउ वी टॉक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से न्यूज आइटम कमिंग फ्रॉम वॉल स्ट्रीट जर्नल, एंड it is talking about Saudi Arabia UAE divide. Let's see where is Saudi Arabia. This is entirely Saudi Arabia, which is you can say surrounded with Yemen, Oman, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait, इधर इराक, जॉर्डन. ठीक है, ये आपका सऊदी अरेबिया. एंड देन देयर इज UAE. ठीक है, एंड देन देर इज सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस. ठीक है, हु इज अ डिफैक्टो रूलर इन सऊदी अरेबिया, हु इज नोन एज मोहम्मद बिन सलमान MBS. ही इज एंग्री विथ UAE प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद MBZ. ठीक है, क्यों गुस्सा है सऊदी क्राउन प्रिंस? बिकॉज UAE प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद डिड नॉट अटेंड GCC समिट. ठीक है, विच वेयर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वॉज कमिंग. और इसलिए MBS ने कहा कि MBZ ने उनको स्टेप किया है बैक में. ठीक है, एंड दे आर गोइंग टू रिटालिएट, ऐसा उन्होंने कहा. ठीक है, याद रहे दोनों किंगडम दे वर क्लोज एलाइज, बट पिछले कुछ सालों में उनके रिलेशनशिप काफ़ी बिगड़े हैं, प्राइमरली रीजनल पॉलिटिक्स में उनके डिसएग्रीमेंट की वजह से. UAE has withdrawn its troops from Yemen and is pursuing a separate agenda of supporting secessionist movement in the south. Yemen में एक सिविल वॉर चल रही है, और सिविल वॉर इज बेसिकली हैपनिंग बिटवीन शिया एंड सुन्नी. एक तरफ सऊदी अरेबिया है, दूसरी तरफ ईरान है. ठीक है, सऊदी अरेबिया और UAE और अपोजिशन में ईरान. तो अब UAE ने अपनी you can say वहाँ से ट्रूप्स हटा लिए हैं. UAE is also expanding their maritime footprint in the region. ठीक है, and thereby they are developing in Eritrea, Somaliland. So ये सब जो रीजन है ना, ये समझिए, ये है आपका एरिट्रिया. ठीक है, ये आपका सोमालिया, इसके नीचे ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये पूरा रीजन, दिस इज यू कैन से आपका अफ्रीकन रीजन. दिस इज नोन एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका. ठीक है, तो वहाँ पे एरिट्रिया और सोमाली में ये UAE अपना मैरीटाइम वी कैन से सिस्टम लगाने की कोशिश कर रहा है. सऊदी अरेबिया हैज एक्सपीरियंस्ड सेटबैक्स इन सीरिया. सीरिया में देयर इज अ सिविल वॉर गोइंग ऑन. ठीक है ना, काफ़ी सालों से चल रही. इट हैज़ बीन मोर देन 10 years नाउ, एंड वेर सऊदी अरेबिया इज सपोर्टिंग सीरिया. ठीक है, सो दे आर setback, they are getting setback against in Syria against ईरान. ठीक है, तो ईरान इज सपोर्टिंग, नोट किया जाए, ईरान इज सपोर्टिंग द पीपल देयर. सीरिया के प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहा है रशिया एंड सऊदी अरेबिया. सो यहाँ पे लोगों की जीत हो रही है. UAE has been reluctant to participate in this initiative and has normalized ties with Israel as well. ठीक है, आपको याद होगा कि इजराइल के साथ अरब कंट्रीज जब भी अपना पीस एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, सो दैट इज नोन एज अब्राहम एकॉर्ड. क्या बोलते हैं इसको? अब्राहम एकॉर्ड. ठीक है, सऊदी अरेबिया ने अरब पीस इनिशिएटिव चालू किया था, अब UAE उसमें अब्राहम एकॉर्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है. ठीक है, जो सऊदी को नहीं पसंद है ना. ठीक है, तो ये सब परेशानियां हो रही है विच यू शुड नो. सो व्हेन दिस टू कंट्रीज आर नाउ बैकिंग डिफरेंट जनरल्स इन सुदान. सुदान में भी एक बड़ी वॉर चल रही है, आपको याद होगा. सुदान में दो बड़ी वॉर मतलब दो बड़े ग्रुप है, एक वॉर चल रही है. ठीक है, कौन से दो ग्रुप है, वो ग्रुप का नाम बताइए और उनके जनरल का नाम बताइए. ठीक है, सो दैट लुक्स बैड, इट इज अनकंफर्टेबल फॉर UAE एंड सऊदी अरेबिया. दिस सऊदी एंड UAE competition, ठीक है, has now touched
in the domestic area. ठीक है, when both countries are seeking regional supremacy. UAE has made it very clear that it will not be kingdom's junior partner and will compete with it all area. So UAE will not remain junior to Saudi Arabia, but it will be equal partner. However, kingdom's leadership position in Arab and Islamic world in central place in global energy, business, finance will ensure that it is preeminent place in regional and world politics, and thereby it will remain unchallenged. So anyway, पावरफुल तो सऊदी अरेबिया ही होने वाला है. मोहम्मद बिन सलमान, याद रहे मोहम्मद बिन सलमान इज नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री. हावेवर वो बड़े पावरफुल है और इसकी वजह से यूएई को कहीं ना कहीं झुकना तो पड़ेगा. अब एक महत्वपूर्ण न्यूज आ रही है कमिंग फ्रॉम यूके. यूके गवर्नमेंट का जो नया मूव आया, ऋषि सिनाक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ऋषि सिनाक हैज सपोर्टेड, it is supporting a plan for new fossil fuel drilling in Britain's coast of North Sea. ऑफशोर ड्रिलिंग को उन्होंने अप्रूवल दे दिया है. और ये जब ऑफशोर ड्रिलिंग को इन्होंने अप्रूवल दे दिया है, दैट इज क्रिएटिंग अ बिग ट्रबल टू climate change. So there is a climate change committee which is opposing this. So drilling in the sea and the ocean for fossil fuel is not only, you can say, aggravates both threats of climate change, but also warms up ocean and raises sea level. So North Sea Transition Authority, which is responsible for regulating oil and gas and carbon storage industries, ठीक है, in the ocean region, उन्होंने ये नॉर्थ सी में ड्रिलिंग करने की परमिशन गवर्नमेंट से मांगी और गवर्नमेंट ने दे दी. रिमेंबर, नॉर्थ सी लाइज बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. ठीक है, ऑन इट्स वेस्ट देयर इज नीदरलैंड्स, बेल्जियम एंड फ्रांस. साउथ में नॉर्वे, डेनमार्क और जर्मनी है. ठीक है, 1958 का जिनीवा कन्वेंशन के द्वारा, ठीक है, विच इज जिनेवा कन्वेंशन ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ठीक है, जो पहला इंटरनेशनल लेजिस्लेशन था जो एस्टैब्लिश करता था दैट राइट्स ऑफ कंट्रीज ओवर देयर कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स. ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के ऊपर उनका यू कैन से क्या कंट्रोल होगा. ठीक है, उसके बाद 1964 में वन मोर ट्रीटी केम. ठीक है, जो यू कैन से ये अप्रूवल देता था कि ब्रिटेन नॉर्थ सी में कैसे एक्सप्लोर कर पाएगा. अब इसकी वजह से कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के लोग इसको अपोज कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड. सिमिलर काइंड ऑफ न्यूज इज कमिंग फ्रॉम इक्वेडोर. इक्वेडोर ने कहा, इक्वेडोर ये रहा आपके सामने, विच इज़ इन साउथ अमेरिका. ये है आपका इक्वेडोर. ठीक है, और इक्वेडोर ने वोट करके ये बोला दैट ड्रिलिंग ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इन अमेज़न्स जंगल, विच इज होम टू अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स and which is serving as a biodiversity hotspot, वहाँ पे कोई ऑयल ड्रिलिंग नहीं होगी. 90% of ballots counted by early Monday says that, you can say, 60% of the people are rejecting the oil exploration in block number 44, which is situated within Yasuni National Park. ठीक है, which is world का one of the very important most biodiverse का रीजियन है. दिस एरिया इज इनहेबिटेड बाय तागाएरी एंड तारोमेनानी करके ट्राइबल लोग हैं, वो लोग रहते हैं. इन 1989 यासूनी was designated as World Biosphere Reserve by United Nations Educational and Scientific and Cultural Organization, which is popularly known as UNESCO. ठीक है, सो उन्होंने इस एरिया को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया. ठीक है, ये रेफरेंडम की वजह से. ठीक है, इक्वेडोर के प्रेसिडेंट जिसका नाम है गुइलेर्मो लासो, वो ऑयल ड्रिलिंग के सपोर्ट में थे. ठीक है, उनको कहीं ना कहीं, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत हो गई है.
ठीक है. सो एनीवे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव न्यूज. ठीक है. अनदर न्यूज कमिंग फ्रॉम इंडिया विच इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइजेस गुजरात हाई कोर्ट for its counter blast in abortion petition by a rape survivor. So there was a case of rape survivor. She asked for abortion. ठीक है. Which is 28 weeks का उनका you can say pregnancy है. जब उन्होंने डिमांड करा कि मुझे प्रेगनेंसी चाहिए गुजरात हाई कोर्ट में, तो गुजरात हाई कोर्ट ने 12 दिन तक, ठीक है, पूरी मतलब जो पूरा केस था उसको एडजर्न कर दिया. फिर जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो गुजरात हाई कोर्ट ने सुओ मोटू हियरिंग चालू कर दी. ठीक है. इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया वुमेन हैज अ सैक्रोसैंक्ट राइट ऑन बॉडीली इंटीग्रिटी, उसका अधिकार है. ठीक है. प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय अ सेक्सुअल असॉल्ट was injurious to the mental health of survivor, and therefore we are allowing this abortion to rape survivor. And when you, that is High Court of Gujarat, ठीक है, we are not appreciating the counter blast by what you are doing it. What is happening in the High Court of Gujarat, that मतलब we are very doubtful of. ठीक है. So this is unjust condition you are putting on the rape survivor. काफी महत्वपूर्ण न्यूज आइटम है दोस्तों, ये आपको याद रखना है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू रीच टू साउथ अफ्रीका टुडे. 15वीं ब्रिक्स मीटिंग हो रही है, 15th ब्रिक्स मीटिंग. इस बार ब्रिक्स मीटिंग के चेयरमैन है साउथ अफ्रीका, और ये जोहानिसबर्ग में हो रही है. एंड एज दिस न्यूज रिपोर्ट सेज दैट ऑल आईज आर ऑन पॉसिबल शी जिनपिंग एंड मोदी साहब की मीटिंग आफ्टर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. ठीक है. 3 साल पुराना झगड़ा हमारा चल रहा है, उसमें हम कैसे काम करेंगे उसके ऊपर बातें हैं. दोस्तों ब्रिक्स के नज़रिए से आपको पता होना चाहिए, ब्रिक्स इज एन एक्रोनिम फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनेल ने यह टर्म को कॉइन किया था. ठीक है. 2006 में इसको फॉर्मलाइज किया गया. 2010 में ब्रिक बिकेम ब्रिक्स बिकॉज साउथ अफ्रीका उसमें ज्वाइन कर गया. ब्रिक्स टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 41% रिप्रेजेंट करता है, पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का 26% रिप्रेजेंट करता है, और ग्लोबल ट्रेड का 16% रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर यू टू नोट. और उन्होंने क्या क्या बड़े महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं. सबसे पहला 6th ब्रिक्स समिट हुई थी 2014 में, फोर्टालेजा ब्राज़ील में हुई थी. वहाँ पे एक नई बैंक बनाने का वादा किया गया विच इज़ नोन एज न्यू डेवलपमेंट बैंक. ठीक है. जो शंघाई चाइना में बनी. उनके पहले चेयरमैन इंडिया से थे. हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एनडीबी, प्लीज़ ये बताइए. हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एनडीबी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. दे ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट वी विल हैव अ कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट. ठीक है. जिसके द्वारा हम अलग अलग कंट्रीज में कभी प्रॉब्लम होंगे, हम उनको पैसों का सपोर्ट कर पाएंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर कर पाएंगे. ब्रिक्स कंट्रीज आर ट्राइंग टू क्रिएट देयर ओन पेमेंट सिस्टम विच इज ऑल्टरनेटिव टू स्विफ्ट. स्विफ्ट क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज इसको कंट्रोल करते हैं. स्विफ्ट का फुल फॉर्म बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में. और चाइना ने ऐसा ही अपना सिप्स चालू किया है. ठीक है. बहुत आगे तो नहीं बढ़ रहा है, सबसे पावरफुल अभी स्विफ्ट ही है. ब्रिक्स भी इसी तरीके से, है ना, अपना नया पेमेंट सिस्टम लगाने के बारे में सोच रहा है. ठीक है. और साथ में कस्टम्स एग्रीमेंट हुए ताकि ईज ऑफ ट्रेड हो सके. स्पेस में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करे. 6 सैटेलाइट अभी तक लॉन्च कर चुके हैं. 2 आर फ्रॉम इंडिया, 2 आर फ्रॉम चाइना, 1 फ्रॉम रशिया एंड 1 फ्रॉम ब्राज़ील, चाइना कोलैबोरेशन के द्वारा. ठीक है. China is not very happy when there is a meeting is taking place between South Korea and Japan. याद रहे, Japan was ruling on South Korea. ठीक है. Japan was ruling on South Korea on 15th August. They got their independence. ठीक है. So they filed a complaint, that is China filed a complaint over a statement released at a first of its kind summit which was held at USA, South Korea and Japan.
इन तीनों का ये मीटिंग हुआ. द मीटिंग टुक प्लेस एट कैंप डेविड प्रेसिडेंशियल रिट्रीट. ठीक है, और यूएस प्रेसिडेंट ने एक रिमार्क दी और बीजिंग ने उसको एग्रेसिव बिहेवियर बोल के बोला कि दिस इज नॉट ओके. वर्ल्ड कप की न्यूज आ रही है. वी ऑल नो दैट फाइनली इन द वर्ल्ड कप, दैट इज फीफा विमेंस वर्ल्ड कप, स्पेन वर्सेस इंग्लैंड में इट इज स्पेन हु वन विथ 1-0. याद रहे दोस्तों, स्पेन 1-0 से जीत गया. स्पेन का यह पहला एक ऐसे वर्ल्ड कप विन है, विमेन का पहला वर्ल्ड कप विन है, और इसके मुताबिक ये दूसरी कंट्री बन गई जिसमें मेल और फीमेल दोनों वर्ल्ड कप जीत के लाए हैं. तो ऐसी पहली कंट्री कौन सी थी? 1991 में जब विमेन्स वर्ल्ड कप पहली बार चालू हुआ, उसके बाद अभी तक टोटल 5 कंट्रीज ये विमेन वर्ल्ड कप जीत चुके हैं. उनमें ये 5वीं कंट्री बनी है स्पेन. इंग्लैंड भी जीतता तो भी वो 5वां कंट्री ही बनता. ठीक है, दोनों में से जो भी जीतते वो 5वें कंट्री बनते. यूएसए का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पावरफुल लेकिन से होल्ड रहा. ओल्गा कार्मोना, शी वॉज द हीरो ऑफ दिस फीफा वर्ल्ड कप फाइनल. अकेला जो गोल हुआ वो उनकी तरफ से हुआ, और उसके बाद उनके फादर की डेथ हुई. उसके फादर बहुत ज़्यादा समय से बीमार थे और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई. दैट इज़ द न्यूज़ विच इज़ कमिंग अप. तो वर्ल्ड कप को अगर नंबर में देखें तो 64 मैचेस खेली गई. टोटल 32 टीमें थी. 10 वेन्यू विच इज़ इन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला गया. टोटल 164 गोल करे गए. अभी तक के जितने भी फीफा वर्ल्ड कप हुए उसमें सबसे ज़्यादा. गोल्डन बूट मिला हिनाता मियाजावा जापान से, 5 गोल करे थे. सबसे ज़्यादा गोल अगर कोई कंट्री ने करे हो दैट इज स्पेन. द यंगेस्ट प्लेयर इज कैसी फेर, साउथ कोरिया से. 16 साल और 26 दिन की थी वो. यंगेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री. विनर को 4.29 मिलियन मिला विच इज़ क्वाइट लेस देन मैन को जो मिलता है वो. ठीक है, हाइएस्ट मैच अटेंडेंस वॉज इन दी यू कैन से 4 गेम्स इन सिडनी विच इज 75,784 was the last match. ठीक है, दैट इज ह्यूज. एंड सबसे ज़्यादा लोग आए थे है ना इस बार. दैट इज वंडरफुल. ठीक है, यूके से एक और न्यूज़ आ रही है. एक ब्रिटिश नर्स थी, शी वॉज जेल्ड फॉर लाइफ. उनका नाम था ल्यूसी लेटबी. अभी वो 33 ईयर की है. ठीक है, शी वॉज कन्विक्टेड ऑफ किलिंग 5 baby boys and 2 baby girls, making her UK's most prolific child serial killer in the modern history. जो आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा है, ल्यूसी लेटबी, शी वॉज अ नर्स. और जब वो नर्स थी उन्होंने टोटल अगेन से 6 बच्चों को 5 + 2 7 बच्चों को उन्होंने मार डाला. शी अटैक प्रीमैच्योरली बॉर्न विक्टिम्स. ठीक है, जनरल नाइट शिफ्ट में वो करती थी. उनके अंदर या तो इंजेक्शन लगाती थी एयर वाला, या उनको ओवरफीड करती थी मिल्क के द्वारा, या उनको इंसुलिन के द्वारा पॉइजन करती थी. ये उन्होंने किया 2015-2016 के बीच में, जब शी वॉज हैंडलिंग इन वन ऑफ द हॉस्पिटल विच इज काउंटेस ऑफ चेस्टर हॉस्पिटल इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. ठीक है, और ल्यूसी लेटबी अटैक्ड हर वल्नरेबल मतलब शी वॉज अटैकिंग इन बच्चों के ऊपर, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया गया है ना. दिस इज रियली यू कैन से अ वेरी बैड थिंग. ठीक है, इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एनी ह्यूमन काइंड. स्पोर्ट्स की न्यूज़. चेस वर्ल्ड कप हो रहा है भैया. मैंने आपसे लास्ट टाइम पूछा था कि ये चेस वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है. FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप. आपको कमेंट बॉक्स में बताना था. ठीक है, मैं भी आपको बता देता हूँ. इट इज हैपनिंग एट बाकू at Azerbaijan, and the final is going to take place between you can say Pragnananda and Carlsen. Carlsen is from you can say Russia and Pragnananda is from India. This is going to be wonderful event. We must watch this. Similarly, there is another World Athletic Championship which is taking place. ठीक है, which is taking place in Budapest. बुडापेस्ट में हो रही है. ठीक है, और वहाँ पे ये मिस्टर नोआ लायल्स ने एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाया. ही वन एंड ही बिकेम द फास्टेस्ट रनर. ठीक है, इन दिस
पर्टिकुलर थिंग। और साथ में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, डेनमार्क कोपेनहेगन में हो रही है, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड नो एंड दैट्स वेयर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम विच इज कमिंग हियर, ठीक है। बड़ा इंस्पिरेशनल मोमेंट है। इंडिया के बहुत सारे प्लेयर ये वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप बुडापेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये आपका लायल से यूएसए से खेलते हैं और ये जीत गए। और ये भाई साहब जो आपको दिख रहे हैं इज नोन एज क्राउजर, ठीक है। दैट उनके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्राउजर के ऊपर, और वो अपनी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाए, ठीक है। यहाँ पे उनके बारे में बहुत अच्छा प्रेस किया गया। उनको ये कहा गया कि इफ द डिक्शनरी हैड एन एंट्री ऑन द बिग गेम प्लेयर it would probably have a picture of a 30-year-old American. Krauser could very well have skipped World Championship as a two-time Olympic champion, a reigning world champion and world record holder who is unbeaten in this year and he has nothing to prove. ठीक है, ये भाई साहब थे शॉर्ट पुट में। Krauser was diagnosed with a blood clot on his legs a day before he was going to fly to Budapest. His training in the last 20 days leading up to a competition was, in his word, was very terrible. Doctors told him not to compete. He showed up at the World Championship and made it to the final. His first throw would prove good enough for the gold, but he set a new championship record with, in the second throw at 22.98 meter. And in the third throw, 23.51 मीटर, सेकेंड लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। हाँ, 5 सेंटीमीटर कम था वर्ल्ड रिकॉर्ड से, उसका खुद का ही है। उसने कहा देयर आर 3 लेवल्स टू द मास्टरी। द फर्स्ट इज व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग, सेकेंड इज व्हेन यू थिंक यू नो एवरीथिंग बट यू डोंट नो एनीथिंग, एंड द लास्ट स्टेज देन यू रियलाइज हाउ मच यू डोंट नो एंड यू जस्ट ट्राई टू फिगर आउट एज यू गो अलोंग, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट ही फोकस्ड ऑन, ठीक है। और यही उन्होंने कहा कि सभी लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की एक क्रोनोलॉजी के बारे में बात करी जाए दोस्तों, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ध्यान रहे ये बात हो रही है 1971 जजमेंट के बारे में, ठीक है, 1971 जजमेंट के बारे में, ठीक है। दोस्तों जजमेंट क्या था थोड़ी देर में बताते हैं, पहले क्रोनोलॉजी समझते हैं। जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने उनके हाथ में जो जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के पावर के मुताबिक सेक्शन 53(2) के मुताबिक नवंबर 21, 2018 को उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी, लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व कर ली। And he put president's rule, ठीक है, अंडर आर्टिकल नंबर 356, ठीक है। आर्टिकल नंबर 356 के मुताबिक जो उन्होंने डिसॉल्व कर दिया और प्रेसिडेंट रूल लगाया, दिस टुक प्लेस ऑन December 19, 2018, ठीक है, ये हुआ दिसंबर को। और उसके बाद ऑन January 3, 2019, ठीक है, अ पार्लियामेंट अप्रूव्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। पार्लियामेंट को अप्रूव करना तो पड़ेगा ना, तो पार्लियामेंट ने उसको अप्रूवल दे दिया, ठीक है, ठीक है। तो वो उन्होंने January 3 को अप्रूवल दे दिया। फिर वापस 6 महीने हो गए, तो July 3, 2019 को वापस पार्लियामेंट उसको एक्सटेंड करती है। एंड देन ऑन August 5, 2019, ठीक है, प्रेसिडेंट इश्यूज ऑर्डर, ठीक है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर विच इंसर्टेड अ न्यू प्रोविजन आर्टिकल नंबर 367 सब क्लॉज 4, ठीक है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, विच इज एप्लीकेबल टू जम्मू कश्मीर। दिस रिप्लेस्ड कि भैया हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्लेस करेंगे बाय वर्ड कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली,
ठीक है. सेम डे पार्लियामेंट एब्रोगेट्स सेक्शन 370 and pass a bill to reorganize the state of Jammu Kashmir. Next day, President declares Article 370 has ceased to apply. ठीक है. Now the big problem is कि क्या, सवाल समझिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद इन अ पर्टिकुलर स्टेट क्या हम स्टेट को ही कैंसल कर सकते हैं? 1971 का एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया. उन्होंने कहा कि वंस गवर्नर डिसॉल्व्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एज्यूम्स पावर ऑफ द स्टेट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रेसिडेंट टेकिंग ओवर बाय क्लेमिंग फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. तो दैट मीन्स अगर 1971 में जो जजमेंट दिया था उसके मुताबिक ये बोल दिया कि अगर आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया है, ठीक है, तो अब आप स्टेट के अपने पावर को छीन नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पे ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पॉसिबल ही नहीं हो सकती है. क्यों पॉसिबल नहीं हो सकती है? क्योंकि वहां पे, है ना, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, आप ही तो सब कुछ संभाल रहे हो. ठीक है, तो आर्टिकल 356 लगाने के बाद आप वहां पे नॉर्मल सी एस्टैब्लिश करोगे स्टेट की पहले, उसके बाद ये सब करोगे, तो ये सब चीज आपने कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल करी है, ऐसा उनका कहना है. आफ्टर 47 ईयर्स लास्ट ल्यूना 24 मिशन था, विच वॉज 1976 में हो रहा था. उसके 47 ईयर के बाद ल्यूना 25 लगाया, विच वॉज रशिया का मिशन है, और वो कोलैप्स हो गया, अच्छे से हो नहीं पाया अगस्त 19 को. ठीक है, अब यही सब इंडिया के लिए, कल देखते हैं इंडिया के साथ क्या होता है ना. दैट इज व्हाट वी शुड नो अबाउट दिस न्यूज़. आई होप दिस इज कंफर्टेबल फॉर एवरीवन. आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.